केरल के वायनाड में कलपेट्टा से विधायक कांग्रेस के टी सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, पिछली बार राहुल गांधी बड़े अंतर से यहां जीते थे, इस बार आप लोगों का लक्ष्य मार्जिन बढ़ाना है? मार्जिन विल बढ़ेगा, डेफिनेटली मार्जिन बढ़ेगा। यू नो, द लास्ट इलेक्शन राहुल गांधी won by 4,32,000 votes. In this election, Rahul ji जीतेगा by a margin of above 5 lakhs vote. It is very clear and visible. इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? यहाँ पर एनी राजा, वो सीपीआई की बड़ी नेता हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर खड़े हैं, तो राहुल गांधी को तो राहुल गांधी का चैलेंज तो बढ़ गया होगा। Yeah, challenge will conclude by this evening by 6 p.m. and the majority will be announced on June 4th, and Rahul Gandhi will be the Prime Minister on the next day. You don't worry. ठीक है, ये बताइए, ये बात चल रही है कि वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद, केरल में चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी के अमेठी से भी चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट हो सकता है। इसको वायनाड के लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोग कैसे समझाएंगे वायनाड के लोगों को? It is not at all a matter here in Wayanad. We are treating Mr. Rahul Gandhi as a family member of Wayanad people. You know, at the time of the critical moments we faced here in Wayanad, at the time of landslide, Puthumala, where several peoples were buried by the landslide. Then second, at the time of COVID. The third, at the time of flood. Fourth, at this juncture, the man-animal conflict. In all these occasions, Rahul Gandhi was with the people of Wayanad. अगर राहुल जी अमेठी से भी लड़ते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? Rahul ji should be with us. That is our prayer, our request, and no matter at all. The other things, no matter at all. Rahul ji is part of Wayanad. Rahul ji is part of Wayanad. He is the parliament member of Wayanad. He will be the Prime Minister of India from Wayanad. That is our request and prayer. सिद्दीकी साहब, मैं चाहता हूं आप एक रिएक्शन मुझे दें। जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एससी, एसटी और ओबीसी लोगों के जो राइट्स हैं वो छीनकर मुस्लिमों को देना चाह रही है। और मनमोहन सिंह का वो पुराना वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो कथित तौर पे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर। वोटिंग वाले दिन ये बीजेपी की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? It is the dark situation of the democracy of India. Yeah, it is totally. We are very much afraid of what the election commission is doing. The BJP Prime Minister, the Indian Prime Minister, Indian Home Minister, BJP National President, all is dividing people. All is dividing the people. They are concentrating on that. They are creating panic among the people. These things is going on. Where is the Election Commission of India? Were there any democratic principle prevailing in India? Is there any constitutional pillars is existing in India? That is a question. That is a serious सवाल है। इस बात बिल्कुल, आप इस सवाल पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी को डराया जा रहा है मुस्लिमों के नाम पर, उस पर आप क्या जवाब देंगे बीजेपी को? Actually, JP Nadda and Prime Minister and Amit Shah, they are not in the opposition for the last 10 days, 10 years. Then this years, you know, they were in power. They have to say, these are our achievements. That they cannot say. A party which was ruled for 10 years, they are raising slogans among the public. This is the question. This is the thing. It is the people are very much conscious and aware. They will do the most maximum things in this voting machine. Yeah. तो टी सिद्दीकी जो केरल में कलपेट्टा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, एक तो जेपी नड्डा ने जो हमला बोला है कांग्रेस का, उस पर पलटवार करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार चलाने वाली बीजेपी को अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की बात। और जहां तक वायनाड का सवाल है, तो वायनाड में पिछली बार भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट पड़ा था। इस बार दावा है कांग्रेस का एक बार फिर कि राहुल यहां से जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेठी के सवाल पर भी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बेशक जो भी फैसला करें
वायनाड के लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, यह दावा कांग्रेस पार्टी का। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, वायनाड।